हाय गाइस, वेलकम बैक टू पीएचजी इन्फोलॉग्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 2 के बारे में। सोनी जल्दी लॉन्च करने वाला है और इसकी लॉन्च डेट और मतलब इसकी प्राइस जो है वो मैं इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले इसके जो फीचर्स है वो मैं आपको पूरे डिटेल में, मतलब हो सके उतने डिटेल में और शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सोनी के जो वाइस प्रेसिडेंट है मित्सुआ किशिदा करके, इन्होंने अपने रिलीज नोट में इसके मतलब अच्छे से अच्छे जो फीचर्स है, नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की है और काफ़ी सालों की सोनी की रिसर्च है वो इन्होंने अपने की नोट्स में बताई है। तो वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और एक यूट्यूबर को, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को, एक वीडियोग्राफर को एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत होती है। तो कैमरे की ज़रूरत होती है, मतलब हम हमेशा कैमरा साथ में नहीं कैरी कर सकते। तो कैमरा, पॉकेट कैमरा हम बोल सकते हैं, हमारा मोबाइल होता है, तो एक अच्छे मोबाइल की ज़रूरत होती है। तो कैमरा के जितने भी सारे अच्छे फीचर्स है वो इन्होंने अपने मोबाइल में दिए हैं दोस्तों। इन्होंने अपने मोबाइल में एक जीएस ऑप्टिक्स करके जो इनके लेंस में नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये मोबाइल कैसे काम करता है, इसका ऑटो फोकस कैसा है, इसके एक टाइम में ये कितनी फ्रेम्स कैप्चर करता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ आगे दोस्तों। तो सोनी एक्सपीरिया मार्क 1 जो है दोस्तों वो आता है 8 GB रैम और 256 GB इनबिल्ट वेरिएंट के साथ। और इसमें दोस्तों 3 कलर्स है, वो आप यहाँ पे अभी स्क्रीन में देख रहे हो। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन्होंने यहाँ पे इमेज में आपको पता चल रहा है कि जो फोटोग्राफर्स प्रोफेशनल है और 40 साल से जो मतलब फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में काम कर रहे हैं, इनके इन्होंने रिव्यू लिए है। Who better to share a bit more about the power of imaging than professional photographer Nick Didlick. As a working photojournalist for over 40 years now, I've come to trust Sony for its extremely accurate autofocus, its high frame rate captures. With my Sony cameras, I'm capturing what I call magic moments. These technologies are what made me switch to Sony for my professional shooting. But like everyone, I also use a smartphone for capturing those personal, spontaneous moments in everyday life. But unlike cameras, pretty much all the smartphones I've ever tried didn't have the technologies that I wanted. Was its Zeiss optics, 12 megapixel sensor, and the perfect balance between quality and speed, which enabled me to capture pictures at 20 frames per second, just like my Alpha 9s. And I was able to find just the right magic moment to share. The Xperia 1 Mark II, like my Alpha cameras, has eye tracking AF that locks on to your subject's eyes, even when they are partially obscured. Xperia 1 Mark II's Photo Pro interface, it allows me to control all the phone settings, just as if I had an Alpha 9 in my hand. With a larger, higher density display, I can instantly see what the image might look like when I'm cropping, enlarging, and sharing. Look, as a professional content creator, I know firsthand that Sony's listening to us. They took photography on a smartphone to a higher level, and they just keep on innovating. You can capture photos in an online user interface between Alpha and Xperia. We have worked closely with creators like Nick on our Cinematography Pro. Features such as touch autofocus and custom white balance will help visual storytellers control the camera more easily. At the request of professional users, we have applied the award-winning noise reduction technology for more clear recording. Our flagship Xperia comes with a 6.5-inch 4K HDR OLED in 21:9 cinema-wide display. A passion for music has resulted in our unique object-based spatial audio technology, 360 reality audio, available through a number of streaming services. This can be enjoyed on any headset. And I'm thrilled to share another exciting news.
Call of Duty Mobile. For this devoted fan, we are offering our unique 21x9 mobile gaming experience combined with direct connection to PlayStation 4's DualShock 4 wireless controller. In addition, you can enjoy Call of Duty Mobile gaming experience optimized as a result of collaboration with Qualcomm's Elite Gaming. Xperia 1 Mark II is powered by Qualcomm Snapdragon 865 mobile platform with multi-gigabit 5G connectivity. We have proved that 5G connected cameras can be a reliable option for future live sports broadcast. तो दोस्तों सोनी एक्सपीरिया जो है ये सोनी दावा कर रहा है कि सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 2 जो है जो अभी लॉन्च होने वाला है दोस्तों वो स्पीड के लिए जाना जाएगा और इसका जो प्रोफेशनल कैमरा रिकॉर्डिंग है वो इसके लिए जाना जाएगा। स्पीड मतलब दोस्तों इसमें 5G टेक्नोलॉजी है। 5G टेक्नोलॉजी मीन्स दोस्तों आप जो भी वीडियो रिकॉर्ड करोगे इसमें वो आप लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। इसकी जो स्पीड है दोस्तों वो कंपेयर टू बाकी मोबाइल की स्पीड से बहुत ज़्यादा रहेगी। इसमें 5G टेक्नोलॉजी है। ये मोबाइल आप यहाँ पे देख रहे हो वीडियो में, इन्होंने बताया है कि आप प्रोफेशनल कैमरा जो मतलब क्रिकेट के ग्राउंड्स पे यूज़ किया जाता है, फुटबॉल ग्राउंड्स पे यूज़ किया जाता है, उस कैमरा का रिकॉर्डिंग ये डायरेक्टली आपके टीवी पे ब्रॉडकास्ट कर सकता है। इसका इतना 5G टेक्नोलॉजी जो है वो स्ट्रांग है। सिर्फ अपने यहाँ पे इंडिया में जो है वो अभी फिलहाल 4G चल रहा है, लेकिन दोस्तों 5G आने के बाद ये फ़ोन अगर आप यूज़ करोगे तो आपका वीडियो आप उतनी जल्दी से ब्रॉडकास्ट कर सकोगे फास्टली। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं उसको इसका काफ़ी यूज़ होगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे वीडियो में सोनी के प्रोफेशनल कैमरा है और प्रोफेशनल कैमरा में यहाँ पे राइट साइड में नीचे एक जीएस का लोगो है। तो दोस्तों ये प्रोफेशनल कैमरा की जो टेक्नोलॉजी है वो जिस प्रोडक्ट के जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखते हैं जीएस के, सोनी के जो कैमरा है जिसमें जो जीएस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो इन्होंने मतलब एकदम नई तरह से मोबाइल में डाल दी है दोस्तों। तो दोस्तों ये जीएस टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वो हम इस वीडियो में भी जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो है दोस्तों इस मोबाइल के पीछे में ट्रिपल कैमरा है और ट्रिपल कैमरा में आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे ऑटो फोकस वगैरह ऐसे डेप्थ वगैरह करके इन्होंने 3 कैमरे दिए हैं दोस्तों। तो इसका जो एक मेन कैमरा है दोस्तों, वो मेन कैमरा है वो 20 फ्रेम्स पर सेकेंड कैप्चर करता है। ये सोनी दावा कर रहा है उसकी की नोट्स में, आप भी देख सकते हो, चाहिए तो बाकी वीडियोस भी है यूट्यूब पे। तो की नोट्स में आप देखोगे आधे घंटे का एक बड़ा सा वीडियो है, उसमें इन्होंने दावा किया है दोस्तों कि सोनी का ये जो मोबाइल है वो किसी भी स्मार्टफोन के मुकाबले में, किसी भी कह रहा हूँ दोस्तों मैं, किसी भी स्मार्टफोन के मुकाबले में 20 फ्रेम्स पर सेकेंड ये कैप्चर करता है। मतलब एक फोटो के लिए इन्होंने एक साइड में अलग से बटन दिया है, मतलब मोबाइल के आपके टॉप में। तो आप जब भी वो बटन क्लिक करोगे तो एक फोटो को ये 20 फ्रेम्स मतलब कैप्चर करता है, 20 फ्रेम्स पर सेकेंड्स के हिसाब से। और एक फोटो का जो ये मूवमेंट है ये 3 टाइप से ये कैप्चर करता है, मतलब 3 टाइम में फोकस होता है। एक टाइम में फोटो जो है आपका जो वीडियो जो है वो कैमरा से जब भी कैप्चर होता है तो 3 जगह पे इसका फोकस होता है। तो आप यहाँ पे वीडियो पे देख रहे हो ये इमेज, तो इन्होंने यहाँ पे एरो से बताया कि ग्रीन जो एरो है ये यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 3 जगह पे इसका फोकस है। तो आपका जैसे ही आपका आए या एनिमल का आए इस मोबाइल के मतलब कैमरे के जब भी कांटेक्ट में आएगा, ये जब भी ऑटो फोकस ऑटो डिटेक्ट करेगा तो इसके ऑटो फोकस से आप मूविंग ऑब्जेक्ट को भी इजीली कैप्चर कर सकते हो दोस्तों। तो बाकी सब मोबाइल में भी है लेकिन वो 20 फ्रेम्स पर सेकेंड कैप्चर नहीं देते, लेकिन ये जो मोबाइल है इसका कैमरा काफी बढ़िया है। 12 मेगापिक्सल के कैमरे, लेकिन सोनी के 12 मेगापिक्सल कैमरे आपको पता है एक्चुअल में 12 मेगापिक्सल सोनी का मतलब प्रॉपर 12 मेगापिक्सल देता है, और बाकी मोबाइल्स के तो आपको पता है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं कि ये लोग इतना मेगापिक्सल देते हैं, लेकिन कितना मेगापिक्सल काम करता है वो आपको भी पता है दोस्तों। तो सोनी का जब सोनी इरिक्सन के साथ भी कोलैबोरेशन था तभी काफ़ी अच्छा साउंड में और गेमिंग्स में वगैरह इनके मोबाइल अच्छे थे, और अभी इन्होंने कोलैबोरेशन किया है जीज प्रोडक्ट्स के साथ, जीज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये मेन जो है वो इन्होंने टेक्नोलॉजी कैमरा में डाली है। तो दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, गेमिंग में भी इन्होंने खास इंप्रूवमेंट किया है, और जो प्ले स्टेशन का जो माउस है तो उसका वर्जन वगैरह भी आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो। माउस का मतलब प्ले स्टेशन का जो 4 शॉक कंपेटेबल जो इसका माउस है, सॉरी इसका जो जॉयस्टिक है वो जॉयस्टिक आप आपके मोबाइल में कनेक्ट करके आप मोबाइल पे गेम कर सकते हो, और इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह तो है ही, और 4K एक्सपीरियंस आप मतलब गेमिंग बीमिंग का
यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी जो रिलीज़ डेट है वो ऐसे कहा जा रहा है कि मई 28 को 2020 मई 28 को ये उसके दरमियान ये मई के एंडिंग में ये मोबाइल रिलीज होने वाला है इंडिया में। और इसकी प्राइस जो है दोस्तों तकरीबन 55,000 तक हो सकती है दोस्तों। तो ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आप बड़ा सा कैमरा कैरी नहीं करना चाहते और आपको कैमरा की फीचर्स चाहिए तो आप ये अच्छा मोबाइल खरीद सकते हो दोस्तों। इसकी कीमत मैं वापस एक बार बता रहा हूँ दोस्तों कि ये मोबाइल मई 28 मतलब मई एंडिंग को 55,000 में लॉन्च होगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ हुई रहेगी। अगर फिर भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बाकी सोनी के वीडियोस देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।